Hello everyone, welcome back to another video. In this one, we'll be talking about the monsoon season. So this is the longest season in our country. It is observed in the months of June, July, August and September. There are a lot of names given to this season. Some may call it the rainy season, some call it the southwest monsoon, and if you ask me personally, I would call it as the worst season for us. Obviously us as in aviators. Yeah. So there are a lot of things we need to learn in this season. Learn as in just know. So which are the wind patterns over our country or the different pressure gradients over our country, which is quite interesting, very basic, not very difficult. But there is a lot to learn. Also, it is very important for you guys to watch the previous two videos, which were the winter season and the pre-monsoon season, because everything is connected. Obviously, we're just doing Indian climatology. One climate leads to the other, and so on. So this is the third video in this series, and you should watch the previous two videos so that you'll get a better understanding of this season. Now, let's see what happens in the season. So monsoon in India is also known as the southwest monsoon. Why is it known as the southwest monsoon? This you learn in this video. We'll start by talking about some basic general circulation of air around different parts of the earth. Though there's a separate chapter on this, but I'll tell you the basics you need to know for this season. So this is the world map. And the red lines you see are the subtropical highs. So these are the latitudes of 30 degrees north and 30 degrees south. So the equator will be around here. So this is the equator. So I'll start by what are the trade winds. So the winds that blow from 30 degrees north and 30 degrees south latitudes towards the equator are the trade winds. So these are the trade winds. Why do these blow from 30 degrees north and 30 degrees south towards the equator? Because 30 degrees north and 30 degrees south latitude space, there is high pressure. I'll write here. This is high pressure area. Even this is a high pressure area. And obviously the equator is a low pressure area. Because equator पे तो हमेशा sun होता ही है. We know what is the Coriolis force, right? हमने देखा था Coriolis force में everything in the southern hemisphere was deflected to the left and everything in the northern hemisphere was deflected to the right. इसमें हमने देखा था इस चीज को straight जाना है, but ये Coriolis force की वजह से right की तरफ deflect हो गई. Similarly, southern hemisphere में अगर इस चीज को straight जाना है तो ये Coriolis force की वजह से left की तरफ deflect हो जाएगी. Now we'll use the same concept for trade winds, because trade winds में भी Coriolis force use होती है and Coriolis force की वजह से ही trade winds की direction decide होती है. हमने देखा था कि इनको 30 डिग्रीज नॉर्थ 30 डिग्री साउथ से इक्वेटर की तरफ तो जाना है, बट क्या ये स्ट्रेट जा पाएंगी? नो. सो फॉर एग्जांपल द विंड्स फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर डिसाइड टू गो स्ट्रेट, ऐसे जाना है इनको, बट बिकॉज ऑफ द Coriolis force they will be deflected to the left. Similarly, in the northern hemisphere, if they decide to go to the equator, they'll be deflected to the right, all thanks to the Coriolis force. So that means trade winds का जो direction है, it is no longer straight. It is somewhat like this for the northern hemisphere and like this for the southern hemisphere. So we can say that in the northern hemisphere, these winds are coming from the northeast, and in the southern hemisphere these winds are coming from the southeast. So this is what we need to know about the trade winds. I have another picture showing this. इसमें it's very clearly seen that northern hemisphere में trade winds ऐसे आ रही हैं and southern hemisphere में trade winds ऐसे आ रही हैं. You can have a look at this one also. ये भी south east से ही आ रही है and ये वाली north east से आ रही है. So ये trade winds हैं. अब the next thing we need to know is कि what is the ITCZ? ITCZ is the Intertropical Convergence Zone. ITCZ is the area where the north trade wind and the south trade wind meets. तो ये trade winds जहाँ meet कर रही हैं, इस area को हम बुलाते हैं Intertropical Convergence Zone.
दिस इज एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। ये इक्वेटर के अराउंड ही होता है। अब इस पिक्चर में तो इट इज एग्जैक्टली ओवर द इक्वेटर, बट दैट्स नॉट द केस ऑलवेज। सो द ITCZ कैन ईदर बी नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर और साउथ ऑफ द इक्वेटर। नेक्स्ट पिक्चर में ITCZ की पोजीशन है ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ्स। तो जैसे दिस इज द इक्वेटर, ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर है, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। तो देखो जनवरी मीन्स नदर्न हेमिस्फीयर में इट इज विंटर, तो द सन विल बी इन द सदर्न हेमिस्फीयर, राइट। एंड ये जो ITCZ है ना, इसकी पोजीशन इज गवर्न्ड बाय द सन। अगर सन नॉर्थ जाता है तो ITCZ भी नॉर्थ शिफ्ट हो जाएगी। जैसे अभी सन इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो वी सी दैट द ITCZ इज आल्सो साउथ ऑफ द इक्वेटर। एंड जब सन नॉर्थ में जाता है, दैट मीन्स व्हेन इट इज समर इन द नदर्न हेमिस्फीयर, दैट इज जुलाई। तो जुलाई में ITCZ इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो द मूवमेंट ऑफ ITCZ इज डिपेंडेंट ऑन द सन। जहां सोलर रेडिएशन ज्यादा होगी उस साइड ITCZ मूव करेगा। एंड ITCZ इज एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो हमारी कंट्री के ऊपर से भी ITCZ जाता है। एंड दिस इज इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में इंडिया में कौन सा सीजन चल रहा होता है? मॉनसून सीजन। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो बस हमें ये ही पढ़ना है। दिस इज व्हाट वील बी स्टडीइंग नाउ कि मॉनसून सीजन में ITCZ जब इंडिया के ऊपर होता है तो उससे कैसे मॉनसून आते हैं इंडिया, बारिश का क्या पैटर्न है, किस साइड से मॉनसून आते हैं, एवरीथिंग। तो हमने देखा कि ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, कहाँ से ब्लो करती है। नदर्न हेमिस्फीयर में ये नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट से आती है। एंड these are the winds that blow around the equator and these lie near the surface of the earth। मतलब ये हाई लेवल विंड्स नहीं है, ये सरफेस लेवल विंड्स हैं। अब हमें देखना है कि इंडिया में इनसे क्या होता है। Obviously, because we are doing Indian climatology, so this is our India। and हमने पिछले सीजन में देखा था कि there is a low pressure over northwest India and we also saw कि the ITCZ is over India। इसमें हमने देखा कि जुलाई में ITCZ इंडिया के ऊपर है, मतलब और लो प्रेशर। What happens is because of these low pressure areas, there is a low pressure belt that is formed over our country, and this belt is from Rajasthan to the head Bay of Bengal। तो अगर मैं इसको बनाऊं approximately ऐसे बनेगा। So this is what we call as the axis of monsoon trough or AMT, axis of monsoon trough। अब क्या होता है ये axis of monsoon trough? So, as the name suggests, if you don't know, trough means an extension of low। मतलब अगर कहीं लो प्रेशर है और वो एक्सटेंड हो गया है थोड़ा दूर तक, we call it a trough। तो यहाँ पर लो प्रेशर था नॉर्थ वेस्ट पे एंड ITCZ था, तो उसकी वजह से AMT फॉर्म हो गया, which is a trough। इसकी नॉर्मल पोजीशन है ओवर द गंगा प्लेन्स। जो ये अभी है, दिस इज ओवर द गंगा प्लेन्स। एंड इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो गंगा प्लेन्स हैं वहां पे देयर इज अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। एंड व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ मॉइस्चर एंड लो प्रेशर? कन्वेक्टिव क्लाउड्स। वी डिड दिस इन समर सीजन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू गाइस वॉच द प्रीवियस वीडियोस बिकॉज फिर कुछ समझ नहीं आएगा। तो हाँ, कन्वेक्टिव एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है इसकी वजह से। अब चलते हैं समर सीजन में कि कन्वेक्टिव एक्टिविटी क्या होती थी। तो ये रही, नीचे बहुत मॉइस्चर है बिकॉज ऑफ गंगा प्लेन्स, ऊपर लो प्रेशर है, लो प्रेशर पुल्स एवरीथिंग अप, तो इट विल पुल ऑल दिस मॉइस्चर अप। एज इट राइजेस इट विल कूल डाउन एंड कन्वेक्टिव क्लाउड्स विल बी फॉर्म्ड। कन्वेक्टिव क्लाउड्स कौन से होते थे? टावरिंग क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस। इन क्लाउड से क्या होती है? बहुत रेनफॉल। तो बस दिस इज व्हाट इज मॉनसून, राइट। मॉनसून में बड़े बड़े क्लाउड्स होते हैं और बारिश ही बारिश होती है। उसका रीजन हमने देखा कि एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ की जो पोजीशन है वहां पे बहुत मॉइस्चर है एंड इस पूरे बेल्ट में देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वेक्टिव एक्टिविटी व्हिच लीड्स टू रेनफॉल। नाउ आई कम बैक टू द ट्रेड विंड्स। दिस इज अ वेरी नाइस फोटो टू शो एवरीथिंग। सो दिस इज द वर्ल्ड मैप। इसमें 30 डिग्रीज नॉर्थ भी है, इक्वेटर भी है एंड 30 डिग्री साउथ भी है। एवरीथिंग आई नीड। हमने देखा था सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रेड विंड्स आई थी साउथ ईस्ट से। एंड एक चीज हमने और देखी थी कि इंडिया के ऊपर लो प्रेशर है एंड दिस लो प्रेशर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। भाई बहुत स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर है क्योंकि सब कुछ तो इंडिया के ऊपर है। ITCZ इंडिया के ऊपर है, फिर नॉर्थ वेस्ट में तो था ही लो प्रेशर, तो पूरा एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ बन गया। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया। अब व्हाट हैपेंस इज, तो द विंड्स वांट टू गो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। अब दिस लो प्रेशर इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट अट्रैक्ट्स द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये अट्रैक्ट हो जाती हैं इस लो प्रेशर से एंड दे कम टू द नदर्न हेमिस्फीयर। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर से ट्रैवल करते करते नदर्न हेमिस्फीयर में आ जाती है।
अब नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है? नदर्न हेमिस्फीयर में सब कुछ राइट की तरफ टर्न हो जाता है एंड सदर्न हेमिस्फीयर में सब कुछ लेफ्ट की तरफ हो रहा था. तो व्हेन दीज ट्रेड विंड्स क्रॉस द इक्वेटर दे स्टार्ट टर्निंग टू द राइट बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स. तो ये ऐसे इंडिया की तरफ आना शुरू कर देती हैं एंड दे हिट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ आवर कंट्री. अब सिंस ये इस डायरेक्शन से आ रही है टुवर्ड्स इंडिया, राइट, एंड दिस इज साउथ वेस्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द साउथ वेस्ट मॉनसून. क्योंकि ये साउथ वेस्ट से आ रही हैं विंड्स इंडिया की तरफ एंड दीज विंड्स हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर. ऑब्वियसली ये पूरा पानी के ऊपर से ट्रैवल करके आ रही हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, तो इट गिव्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री. अब मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ. तो आई हैव अनदर मैप ऑफ इंडिया. इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक द एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ जो कि राजस्थान से हेड बे ऑफ बंगाल पे है एंड आई विल मेक द इक्वेटर which will be somewhere around here. तो ये एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ हो गया और ये इक्वेटर हो गया. Now we know that the trade winds were coming from the southeast. They cross the equator and approach India from the southwest, just like this. Now if someone asks you कि where is the first rain in our country experienced? So the answer will be Kerala, because Kerala is the region which is closest to this path of the trade winds, right? ट्रेड विंड्स यहीं से आ रही है एंड केरला भी यहीं है. तो द फर्स्ट रेन इन आवर कंट्री इज एक्सपीरियंस्ड इन केरला अराउंड 31st of May. उसके बाद दीज करंट्स मूव अप टू बैंगलोर एंड बैंगलोर में इट स्टार्ट्स रेनिंग एट अराउंड 5th of June. अब मुंबई में इट स्टार्ट्स टू रेन अराउंड 10th of July बिकॉज थोड़ा दूर है ये. करंट्स को ऐसे ट्रैवल करके आना पड़ेगा मुंबई, राइट? तो केरला में इट स्टार्ट्स रेनिंग अराउंड 31st May, Bangalore 5th of June and Mumbai around 10th of July. अब now these are the western ghats. ये जो ग्रीन से बने हुए हैं ये वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे. What happens is winds तो आती हैं साउथ वेस्ट से and they have a lot of moisture with them. बड़े बड़े कन्वेक्टिव क्लाउड्स बन के आते हैं एंड स्टार्ट्स रेनिंग ऑन दिस साइड क्योंकि ये विंडवर्ड साइड है. अब विंडवर्ड साइड क्या होती है? मेक अ माउंटेन ओवर हियर. ये एक माउंटेन है, इसमें विंड यहाँ से आ रही है. तो ये साइड जो है दिस इज द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन जहां से विंड आ रही है. और ये जो साइड हो गई इसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड. एंड सिंस बहुत सारे क्लाउड्स आ रहे हैं, राइट, तो दीज क्लाउड्स हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर एंड ये सारे क्लाउड्स इस साइड बारिश देंगे. अब बाय द टाइम दीज क्लाउड्स कम ऑन द लीवर्ड साइड दे वोंट हैव अ लॉट ऑफ मॉइस्चर विद देम. तो यहाँ पर रेनफॉल नहीं होगी. There will be no rainfall in the leeward side. So this side is also known as the rain shadow area. जो brown वाला मैंने mark किया है, this is the rain shadow area. And green side में it rains very very heavily. तो western घाट्स के left side पे there's a lot of rainfall. पूरे area में बहुत rainfall होती है. और जो leeward side है वहाँ पर बिल्कुल rainfall नहीं होती. And if you notice तमिलनाडु के region में, this region, there is no rainfall because it's in the rain shadow area. So this is a very important question for exam कि it does not rain in Tamil Nadu during the onset of the southwest monsoon. तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा ट्रेड विंड सदर्न हेमिस्फीयर से नदर्न हेमिस्फीयर में आ गई एंड वो साउथ ईस्ट से आ रही थी, अब वो साउथ वेस्ट से आती हैं एंड दे हिट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. सबसे पहले बारिश होती है केरला में, उसके बाद बैंगलोर, फिर मुंबई, ऐसे करके रेनफॉल प्रोग्रेस कर रही है. अब देयर इज अनदर थिंग कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून है इंडिया का, इट हैज टू ब्रांचेस. फर्स्ट ब्रांच इज द अरेबियन सी ब्रांच, जो ये ब्रांच है. दिस इज द अरेबियन सी ब्रांच. यहाँ मैं लिख देता हूँ क्योंकि इस साइड अरेबियन सी होता है ना एंड इसका सारा मॉइस्चर देखा जाए तो अरेबियन सी से ही आया. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द अरेबियन सी ब्रांच. अब दूसरी ब्रांच जो होती है इट इज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. तो यहाँ पर वी हैव द बे ऑफ बंगाल एंड द एक्सेस ऑफ मॉनसून ट्रफ इज लाइंग राइट एट द बे ऑफ बंगाल. ये एग्जैक्टली बे ऑफ बंगाल के ऊपर है एक्सेस ऑफ मॉनसून ट्रफ का एंड. तो दैट मीन्स ये लो प्रेशर एरिया है बे ऑफ बंगाल के ऊपर. तो दीज विंड्स जो कि यहाँ आई थी वेस्ट से, दीज विंड्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लो प्रेशर एट बे ऑफ बंगाल एंड दे स्टार्ट मूविंग दिस साइड बे ऑफ बंगाल की तरफ. एंड फ्रॉम देयर ये पूरे एक्सेस ऑफ मॉनसून ट्रफ के ऊपर रेनफॉल देती हुई जाती है क्योंकि पूरा लो प्रेशर है तो यहाँ बहुत रेनफॉल होती है. एंड दिस ब्रांच इज नोन एज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. ये जो ब्रांच है मॉनसून की, दिस इज द बे ऑफ बंगाल ब्रांच. एंड ये जो थी ये थी अरेबियन सी ब्रांच.
अब there is low pressure over Bay of Bengal. तो this low pressure creates a suction force. Suction मतलब it pulls. तो Bay of Bengal में जितना भी मॉइस्चर था इसने पुल किया and it supplemented the southwest monsoon. क्योंकि जब साउथ वेस्ट मानसून आया था इट हैड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, फिर इसका मॉइस्चर इस साइड खत्म हो गया एंड जब ये आगे आया मॉइस्चर कम था इनके पास, तो इट गॉट मॉइस्चर फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल. क्योंकि बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर था तो लो प्रेशर की वजह से मॉइस्चर बढ़ गया, तो इसने पुराने जो करंट्स आ रहे थे उनको इसने और स्ट्रॉन्ग बना दिया एंड ये जाता गया. तो अब 29 जून के आसपास दिल्ली में भी रेनफॉल आ जाती है and by the first week of July our whole country is experiencing the southwest monsoon. तो अब what happens is कि इंडिया के ऊपर जो लो प्रेशर था वो कम होने लग जाता है. I'll explain. This is the ground and हमारे ऊपर बहुत सारे clouds थे. Because of the monsoon trough we had a lot of clouds, जिसकी वजह से sun की जो rays हैं वो ground तक नहीं आ पाई. Clouds की वजह से ground तक नहीं आई. And maximum heating कैसे होती है? मैक्सिमम हीटिंग होती है जब सन की रेज ग्राउंड पे आती है एंड रिफ्लेक्ट होती है. तो ऐसे होती थी हीटिंग एंड अब तो ग्राउंड पे आ ही नहीं पाई रेडिएशन. दैट मींस हीटिंग कम हो गई, लो प्रेशर कम हो गया उसकी वजह से. Because of that, what happens now is that our axis of monsoon trough or the AMT starts moving to the north. This starts moving to the north, and ये north जाते जाते कहाँ पर settle होता है? तो it settles in the foothills of Himalayas. ये Himalayas में जाके settle हो जाता है हमारा axis of monsoon trough. तो जो new AMT है वो यहाँ है. Now this happens after 15 days of all this. ये सब हुआ, इसके 15 दिन के बाद हमारा AMT ऊपर shift हो गया. And this is what we call as the break in monsoon. इसकी वजह से जो हमारा लो प्रेशर था ओवर द हेड बे ऑफ बंगाल, इस एरिया में जो लो प्रेशर था वो खत्म हो जाता है. अब AMT ऊपर शिफ्ट हो गया है and since the suction over Bay of Bengal is not anymore or it is very weak, the rainfall reduces. So this is what we call as the break in monsoon. यहाँ पर हिमालयाज है. And break in monsoon के टाइम पे it only rains in the foothills of Himalayas and Tamil Nadu. अब सोच रहे होंगे भाई तमिलनाडु यहाँ तो पहले भी नहीं हुई थी, अब कैसे हो गई? So there are some easterly winds that are blowing, बहुत strong winds. अभी हम उस पे भी आएंगे. So because of the wind pattern, it rains in Tamil Nadu as well. So this is also a very important question for the exam. During break in monsoon, it rains only in the foothills of Himalayas and Tamil Nadu. अब इसके बाद what happens? Now what happens is, since the cloud cover is not there anymore, ठीक है, क्योंकि AMT ऊपर शिफ्ट हो गया, तो अब cloud cover हट जाता है. And since the cloud cover is not there anymore, the solar radiation increases. जो यहाँ पर हमने अभी देखा कि clouds की वजह से नीचे तक नहीं आ रही थी, तो अब वो clouds ही हट गए, clouds ही कम हो गए. उसकी वजह से sun की radiation वापस आने लग गई ग्राउंड पे, वापस हीटिंग होनी शुरू हो गई, वापस लो प्रेशर हुआ एंड उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ केम बैक टू द नॉर्मल पोजीशन व्हिच वाज ओवर द गंगा प्लेन्स. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिट्रीवल ऑफ मॉनसून. एंड रिट्रीवल ऑफ मॉनसून में ये सब वापस होना शुरू हो जाता है. अब ये जो साइकिल है ना, ब्रेक इन मॉनसून, रिट्रीवल ऑफ मॉनसून की, ये 5 to 6 टाइम्स अ मंथ होती है एंड ऐसे ब्रेक रिट्रीवल होता रहता है. देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया में द रेनफॉल इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, राइट. नॉर्थ इंडिया में तो यहाँ से आ रही है भाई रेनफॉल, इस डायरेक्शन से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट है. बट हम फिर भी इसको साउथ वेस्ट मॉनसून बुलाते हैं. क्यों? बिकॉज इट वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साउथ वेस्ट ना. साउथ वेस्ट से ही तो मेन आना शुरू हुई थी इंडिया में. इट वॉज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साउथ वेस्ट. दैट्स व्हाई वी कॉल इट साउथ वेस्ट मॉनसून. Now the last part of this chapter, which is the presence of a jet stream, जिसको हम ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट बुलाते हैं. मैं इसी डायग्राम के ऊपर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट भी एक्सप्लेन कर देता हूँ. ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, so it is at around 45,000 feet, which blows from east to west at an average speed of 60 to 70 knots. And ये हमारे मॉनसून्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है. So this is the tropical easterly jet. इधर से आ रही है ये तेज. ये हमारे मॉनसून को स्ट्रॉन्ग इसलिए बना देती है क्योंकि ये विंड्स को ईस्ट की तरफ ले जाना शुरू कर देती है. बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इसकी वजह से हमारे जो विंड के करंट्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जाना शुरू कर देते हैं.
इसी की वजह से we got rainfall in Tamil Nadu during break in monsoon. Okay, so the chapter is over now, but I have like 3-4 points जो आप एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो to solve questions and all. You know, it's like a summary. So first point is कि the position of rainfall depends on the position of axis of monsoon. इसका मतलब ये है कि जब हमारा AMT हिमालयाज के पास चला गया था तब हमारी रेनफॉल फुटेज ऑफ हिमालयाज में होने लगी, और जब वो गंगा प्लेन्स के ऊपर तब हमारी रेनफॉल उस एरिया में होने लग गई थी. तो जो पोजीशन है ना AMT की, उसी के हिसाब से रेनफॉल की भी पोजीशन डिसाइड होती है. ठीक है. नेक्स्ट है कि अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड्स ऑन द लो प्रेशर ओवर बे ऑफ बंगाल. हमने देखा था कि जो हमारा लो प्रेशर था बे ऑफ बंगाल के ऊपर, उसकी वजह से हमारा मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा था, एंड जितना ज्यादा लो प्रेशर था ओवर बे ऑफ बंगाल उतनी ज्यादा रेनफॉल हो रही थी. तो बस उसमें यही लिखा है कि द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड्स ऑन द लो प्रेशर ओवर बे ऑफ बंगाल, ओवर हेड बे ऑफ बंगाल. अब नेक्स्ट है कि ब्रेक इन मॉनसून जब होता है देन इट रेन्स ओवर फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज एंड तमिलनाडु. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई टोल्ड यू पहले. नेक्स्ट है कि व्हेन यू आर फ्लाइंग ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, लिख देता हूँ वेस्ट कोस्ट, जब आप वेस्ट कोस्ट के आसपास फ्लाई कर रहे हो तो 3 किलोमीटर्स पे यू विल एक्सपीरियंस विंड्स फ्रॉम द साउथ वेस्ट एंड 13 किलोमीटर्स पे यू विल एक्सपीरियंस विंड्स फ्रॉम द ईस्ट. फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर फ्लाई कर रहे हो, दिस इज योर एयरक्राफ्ट. अब अगर आप 3 किलोमीटर्स पे फ्लाई कर रहे हो तो आपको जो विंड्स मिल रही हैं वो साउथ वेस्ट से मिलेंगी, एंड अब अगर आप 13 किलोमीटर्स पे फ्लाई कर रहे हो तो वो आपको विंड्स यहाँ से मिलेंगी, ईस्ट से. जो ईस्ट से विंड्स हैं वो है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की वजह से, एंड जो साउथ वेस्ट से विंड्स मिल रही थी 3 किलोमीटर्स में वो थी अरेबियन सी ब्रांच की वजह से. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी पॉइंट, बट हाँ इस पे क्वेश्चन आते हैं. अब द लास्ट पॉइंट इज कि द नॉर्मल पोजीशन ऑफ AMT इज गंगा प्लेन्स. तो जो नॉर्मल पोजीशन है एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ की, इट इज ओवर द गंगा प्लेन्स, एंड जब ब्रेक इन मॉनसून होता है तो इट इज ओवर द फुटेज ऑफ हिमालयाज. Okay, so that was everything you need to know about the monsoon season. I know it's just a bit vast, but it's not difficult. Believe me, it's not difficult. There are some important points that I gave you, and you can have a look at them. You can just go through the questions you may have, and it is not very difficult. For any doubts, any queries, you guys can feel free to DM me anytime, and I'll see you in the next video. Thank you for watching.